Hello students, welcome back to online video classes. Okay dear students, in previous video we completed our third number unit. Okay, in that unit we discussed run poem and the lesson or the story Nasruddin's aim. Okay, hope so you understood the poem and lesson, and then we also completed the question answers. Okay, now today we are going to start our workbook, unit number 3. So open your book and see on page number 11. Okay, here first number question is, using word box replace the underlined words and rewrite the sentences correctly. Okay, in word box there are words and their words are similar to underlined words. मतलब हमें क्या दिया गया है, जो words दिए गए हैं बॉक्स में, वर्ड बॉक्स में, और जो सेंटेंस में अंडरलाइन कर दिए गए उसमें जो सिमिलर वर्ड्स है उसको क्या करना है, सिर्फ रिप्लेस करना है. फॉर एग्जांपल एस्टोनिश को रिप्लेस करना है, उसके बाद डिबेटेड को रिप्लेस करना है, उसके बाद इंस्टेंटली एंड विक्टोरियस, इन सब वर्ड्स को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है जो उसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स है उनसे. फर्स्ट नंबर सेंटेंस, टू आवर एस्टोनिशमेंट Nidhi won the 100-meter race. The answer is the similar word of astonishment is amazement. To our amazement, Nidhi won the 100-meter race. देख यहाँ पर जो वर्ड्स है astonishment, उसका similar word क्या है, amazement. Next, the stranger debated with the guards to meet the king. The stranger argued with the guards to meet the king. यहाँ पर argue, डिबेट का अपोजिट वर्ड क्या, सिमिलर वर्ड क्या है, आर्ग्यू करना. डिबेट देखा होगा आपने, डिबेट्स में वो जो आगे होता है उसका जो कॉम्पिटिटर होता है उसके साथ आर्ग्यूमेंट करनी होती है. वो अगर एक बात बोलता है तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, अपोज करना पड़ता है. ओके, नाउ सी नंबर, इवन आफ्टर 5 years आई इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज हर बाय नेम. Even after 5 years, I immediately recognize her by name. Instantly and immediately, the meaning of both the words same. दोनों का meaning एक ही है, instantly, immediately, मतलब जल्दी से. And D number, our school emerged victorious in inter-school painting competition. Victorious मतलब जीत गए वो. Our school emerged triumph इन इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन. ट्रिम्ड और विक्टोरियस का मतलब जीतना वही होता है, और दोनों का मीनिंग यहाँ पर है. तो हमने अरेंज ऑल द वर्ड्स दैट गिवन इन वर्ड बॉक्स एंड वी रिप्लेस दैट वर्ड्स. ओके, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन, चेंज द कंपाउंड सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस. Okay, there are actually we discussed the types of sentences. Okay, we discussed about assertive sentence, interrogative sentence, simple these sentences we discussed. But there are more types of sentences like simple sentence, compound sentence, and complex sentence. We will discuss this also in our grammar topic. But here we need to change the sentence into compound to simple sentence. यहाँ पर हमें compound sentences के simple sentence करने. एक्चुअली सिंपल सेंटेंस में एक ही क्या होते हैं, एक ही सेंटेंस होता है. कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 से ज्यादा 3 सेंटेंसेस हो सकते हैं. ओके, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस के आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है और दोनों सेंटेंसेस के एक ही सेंटेंस आपको बनाने. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, अमित इज द मोस्ट पॉपुलर बॉय ऑफ आवर क्लास बट कैन नॉट बिकम द मॉनिटर. हियर आर 2 सेंटेंस या 2 सेंटेंस. इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर आपको क्या बनाना है, we need to complete only one sentence. For example, the most popular boy of our class Amit cannot become the monitor. Okay, यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंस को मिलाकर एक ही सेंटेंस बनाया है जो है the most popular boy of our class Amit cannot become the monitor. Okay, like same here. Second number, we bought the gifts, attended the party, and went home. Okay, common there are 2 sentences. We bought the gifts for attending the party, then we went
होम। इस तरह से दो सेंटेंसेस का आपको एक सेंटेंस बनाना है। देन सी नंबर, द बेगर एट ग्रीडीली बिकॉज ही वॉज हंग्री। द हंग्री बेगर एट ग्रीडीली। इस तरह से वो आप उस सेंटेंस को एक बना सकते हो। ओके, नाउ डी नंबर, दे फाउंड द बॉय बट ही वॉज वीक। दे फाउंड वीक बॉय। ओके, लाइक दिस the simple compound sentences we completed and we convert these sentences into simple sentences. Okay, इस तरह से हमें compound sentences के simple sentences में उनको convert करना है। Okay, इस तरह से और सारे जो example आएंगे हमें आगे grammar के वो topic में we will discuss that time। जब वो आएगा तब हम discuss करने वाले हैं। Okay, now third number question, rewrite the sentences using continuous tense। Okay, continuous tense, in continuous tense what we do, हमें पता है we know about the tenses, present, past and future, and their subtypes like simple tense, continuous tense, perfect continuous tense. These are the tenses, we know that, but here what to do, we need to rewrite the sentences using the continuous tense। and what we do in continuous sentence, डू यू रिमेम्बर कि हम कंटिन्यूस सेंटेंस में क्या करते हैं, जो वर्ब होता है इंपॉर्टेंट थिंग इन सेंटेंस, तो वर्ब को हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। कब कब आईएनजी लगाना है वर्ब में वो हमें पता है कंटिन्यूस सेंटेंस में। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर, द बेबी प्लेज विद द बॉय। द बेबी इज प्लेइंग विथ, सॉरी, द सेंटेंस इज द बेबी प्लेज विद द टॉय एंड द बेबी इज प्लेइंग विद द टॉय। Okay, whenever M is R there, then we added ing to verb। जब भी M is R होता है तब उसको ing लगाते हैं। तो उस सेंटेंस को, इस सेंटेंस को कंटिन्यूस टेंस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने पड़ेंगे, M is R और was were। The baby is playing with the toy। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं, the baby was playing with the toy। मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं कंटिन्यूस सेंटेंस को, सिर्फ फ्यूचर में बना सकते हैं और पास्ट में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ प्रेजेंट में बनाए, जैसे मैंने एक बताया, तो पास्ट में कैसे कर सकते हैं। नाउ सेकंड नंबर, ही क्लाइम्स अप द ट्री। ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। क्लाइंबिंग और जब आईएनजी लगाते हैं कंटिन्यूस टेंस होता है तो वो प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। अभी वो कर रहा है वो कुछ चीजों को, ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, अभी वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है। Now third number, C number, the dog barked। The dog is barking। यहाँ पर bark is in third form, तो यहाँ पर हमें ing लगाना है। The dog is barking। The dog is barking some like at someone, at me, at stranger, किसी के ऊपर वो भौंक सकता है, तो वो sorry, तो is barking। जो ही drew a beautiful पिक्चर, जो ही इज ड्राइंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर। जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब को हमें आईएनजी लगाना है। देखो हमने सिर्फ वर्ब्स को ही आईएनजी लगाए, जो बाकी के वर्ड्स है उसको हम आईएनजी लगा सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। सो वर्ब इज इंपॉर्टेंट इन एवरी सेंटेंस। वी कैन चेंज द वर्ब लाइक एडिंग आईएनजी, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हमने डिस्कस किया है, जैसे कि पास्ट टेंस फॉर्म, सिंपल फॉर्म होता है, पास्ट टेंस फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, वो कैसे चेंजेस होते हैं हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। ओके, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, व्हाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन? फॉर यू, व्हाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू? आपके लिए गेम्स और स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? वी नो दैट व्हेन वी प्ले इन द गेम्स or any sport, then this is helpful for our body। अगर हम गेम खेलते, स्पोर्ट खेलते तो हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा होता है। कैसे? बिकॉज दे कीप देम फिट एंड हेल्दी। गेम्स और स्पोर्ट क्या करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड एक्सरसाइज। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड एक्सरसाइजेस। वो एक्सरसाइजेस भी अच्छी होती है, हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग बनने शुरुआत होती है। और आपको उस डिजीज, जो डिजीज होती है, मतलब जो आजार कहते हैं उसे, जो रोग कहते हैं, तो उस उन चीजों से, उन डिजीजेस से हम बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर उससे बढ़ सकती है। ओके, फोर्थ नंबर,
question over and you can add your own sentences. What you think about the games and sports? Why important for games and sport for children? Important क्यों ये गेम्स और स्पोर्ट लोग बच्चों के लिए? तो आप अपने मन से भी 2-3 सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप ज्यादा आपने होमवर्क किया, स्टडी किया, तो कुछ रिलीफ के लिए थोड़ा खेलना भी इंपॉर्टेंट होता है, खेलना ही चाहिए। मतलब ज्यादा नहीं, पूरा दिन ही खेलना है ऐसा नहीं, 1 घंटा 2 घंटे आप खेल सकते हो जब आपका होमवर्क कंप्लीट होता है। ओके, नाउ 5th number, write 4 words each with double E and EA। हमने ये सीखा था क्या, डबल E लगाकर और EA लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं। वो हमने डिस्कस भी किया और कुछ वर्ड्स लिखे भी। तो यहाँ पर भी हम डबल E के कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि SEED सीड, यहाँ पर बीच में डबल E आ रहा है, FEEL फील्ड, DEEP डीप, SHEEP शीट, REACH रीच। यहाँ पर क्या ऐड करना है हमें, E और A, REACH, यहाँ पर EA, उसके बाद यहाँ पर भी EA टीच, क्रीम, CREAM क्रीम, DREAM ड्रीम। ओके, इस तरह से EA और यहाँ पर डबल E हमने ऐड किया। ओके, अंडरस्टूड what to do here and you can add more words। अगर आपको डबल E के ज्यादा वर्ड्स पता है तो आप वो नोटबुक में भी लिख सकते हो। उसके बाद E और A के वर्ड्स पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 12 we completed 5 questions and some questions are remain, so you need to try at your home to complete this question answer। अगर आपको आते कुछ सॉल्व करने, सिंपल है एक्चुअली में, वो आप घर पर सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं आता है तो वो हम आगे की वीडियो में लेने वाले। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे we stop here and next video we will discuss the remaining part of this workbook unit number 3. Thank you very much.